آج ویو 360 میں پاکستان میں آٹے کا بحران، یوٹیلیٹی سٹورز اور سستے نرخوں پر آٹا کس حد تک عوام کو ریلیف دے رہا ہے، اور 6 افراد میں 10 کلو آٹا 6 سے 7 دن چلتا ہے مشکل سے۔ اور جانیں گے کہ نیچر فوٹوگرافرز زمین کے قدرتی ماحول میں آنے والی تبدیلیوں کو کیسے دیکھتے ہیں۔ ہمیں دنیا کا ہر کونا کسی اور کے نظریے سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، دنیا میں سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے والے 10 ممالک میں پاکستان کا 8واں نمبر ہے، لیکن ملک میں گندم کی قلت، مہنگائی اور معاشی بحران کی وجہ سے آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ امریکی محکمہ زراعت کے مطابق گزشتہ برس پاکستان میں 2 کروڑ 74 لاکھ میٹرک ٹن سے بھی زیادہ گندم پیدا ہوئی، لیکن 2023 کے لیے کی گئی پیشگوئی کے مطابق اس سال گندم کی پیداوار میں 10 لاکھ میٹرک ٹن کی کمی ہوگی۔ پاکستان نے مالی سال 2022 میں اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے تقریباً 22 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کی۔ اگر پاکستان میں گندم کی طلب کے اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو ملک بھر میں ہر سال ایک شہری تقریباً 124 کلو گرام گندم استعمال کرتا ہے۔ پاکستانی حکومت کے حالیہ نظر ثانی شدہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گندم کی طلب 2 کروڑ 80 لاکھ سے 2 کروڑ 90 لاکھ میٹرک ٹن ہو سکتی ہے۔ اس سال حکومت کی طرف سے ملک میں گندم کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے 30 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان بھر میں آٹے کی قلت اور قیمتوں میں اضافے پر عوام میں بے چینی اور پریشانی پائی جا رہی ہے۔ چلتے ہیں اسلام آباد گیتھیارہ انیس کی طرف سے، ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں کیا صورتحال ہے۔ گیتھی، کیا صورتحال ہے اس وقت ملک کے مختلف حصوں میں آٹے کی قلت کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو درآمد کی جانے والی گندم ہے، کیا سمجھتے ہیں ماہرین کے مارکیٹ میں پہنچنے سے اس گندم کے مسئلہ حل ہوگا؟ اسد، جیسے آپ نے بھی ذکر بھی کیا کہ 30 لاکھ ٹن کا حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ درآمد کی جائے گی، اس میں سے 12 لاکھ ٹن جو ہے وہ آ چکی ہے اور مزید جو ہے وہ پہنچنی ہے مارچ کے جو ہے بالکل آخر تک اور اپریل کے شروع تک جو ہے وہ مزید درآمد کی جائے گی۔ اچھا، اس وقت جو ہم مختلف صوبوں میں دیکھ رہے ہیں صورتحال کہ لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، لوگ جو ہے وہ جو حکومت کی جانب سے لائے جا رہے ہیں موبائل ٹرک جن میں آٹا ان کو میسر ہے، اس تک بھی ان کی رسائی اتنی آسانی، اور اس کی قیمت جو ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ فرق آیا ہوا ہے اس وقت۔ تو اس بارے میں جن سے ہماری بات ہو رہی ہے، جن سے بھی ہم نے پوچھا ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں انتظامی جو ہیں وہ امور ہے اس میں، اور سیاسی امور ہیں وہ بھی اس تمام صورتحال پہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ آج جو ہے پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں انہوں نے بھی اس پہ بات کی ہے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ وفاق جو ہے اس کا کام تھا کوئی انشور کرے کہ درآمد جو ہے وہ پوری ہو اور بر وقت ہو، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اسی چیز کو فالو کر رہے ہیں، لیکن جو اس کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ صوبائی مسئلہ ہے، اور اس میں کل جو ہے وہ مزید سے جو وزیر خوراک ہے طارق رشید چیمہ، وہ اس پہ مزید جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ڈیٹیلز ہیں وہ شیئر کریں گے۔ لیکن اب تک صورتحال ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جہاں پہ سپلائی بڑھائی بھی گئی ہے ملوں کو حکومت کی جانب سے بیٹ کی، وہاں پہ بھی صورتحال ابھی سنبھلی نہیں ہے، بلکہ ایک جو کرائسس کی سچویشن، ایک بحرانی کیفیت جو ہے وہ ابھی چل رہی ہے۔ یہ کب تک چلے گی اسے فوری طور پہ تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن شاید تھوڑے مختلف مراحل میں جو ہے اس میں کوئی واقعہ ہوگی۔ بہت شکریہ گیتی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں اسلام آباد سے۔ اسلام آباد کے بعد چلتے ہیں لاہور کی جانب۔ صوبہ پنجاب میں آٹے کی دستیابی کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ یوٹیلیٹی سٹورز اور حکومت کے ساتھ جو رجسٹرڈ کریانہ سٹورز ہیں وہ عوام کو کس حد تک ریلیف دے پا رہے ہیں؟ سمن خان نے جاننے کی کوشش کی۔ لاہور میں آٹے کی خریداری وہ بھی سرکاری ریٹس پر بظاہر ان دنوں عام عوام کے لیے ایک مشکل ٹاسک ہے۔ آٹا جو کہ پاکستان کی بیشتر آبادی کی روزمرہ خوراک کا ایک اہم حصہ ہے، لوگوں کے لیے اس کی روز بروز بڑھتی قیمتیں باعث فکر اور باعث تشویش ہے۔ اگر سرکاری ریٹس کی بات کریں تو 10 کلو کے آٹے کا تھیلا 645 روپے میں، جبکہ 20 کلو آٹے کا تھیلا 1295 روپے میں دستیاب ہے، اور اگر عام مارکیٹ سے اسی آٹے کا 15 کلو کا تھیلا خریدیں تو 2000 سے 2100 روپے میں یہ فروخت ہو رہا ہے۔ اس وقت ہم شالامار کے علاقے میں ایک ایسے کریانے کے اسٹور پر موجود ہے جہاں پر آٹا سرکاری ریٹس پر دستیاب ہے، اور لوگوں کی قطار آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں۔ لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ کیا آٹا انہیں بآسانی دستیاب ہے اور وہ کتنے مطمئن ہیں آٹا ملنے کے اس طریقہ کار پر۔ بتائیں کہ آٹا کیا بآسانی دستیاب تھا؟ آج پتہ نہیں، ہمیں مہینے بعد ملا، ایک توڑا ملا ہے
हमें ये 20 किलो का नहीं 10 किलो का तोड़ा मिला है। आम दुकान से क्यों नहीं खरीद? आम दुकान से आटा महंगा है, हम गरीब लोग हैं, हम लोग नहीं, हम पहुँच हमारी नहीं, हम नहीं खा सकते आटा इतना महंगा। हमारे कमाने वाला एक है और माशाल्लाह खाने वाले 6 है। हम लोग कोई इतनी हमारे पास हैसियत नहीं है कि हम दुकान से 3-3 हज़ार का आटा ला के खाए। ये तो एक आम किराना स्टोर की सूरत हाल है जहां पर सरकारी रेट्स पर आटे की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा रहा है। एक यूटिलिटी स्टोर का भी जायज़ा लेते हैं कि क्या यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आवाम को बाआसानी आटा दस्तयाब है या नहीं। इस वक्त हम गढ़ीशाह के इलाके के एक यूटिलिटी स्टोर पर पहुंचे हैं और यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या यहाँ आटा उन्हें बाआसानी दस्तयाब है। अच्छा आप बताएं कि आटा आपको आसानी से मिल रहा है? नहीं मिल रहा। कैसे, क्यों? लाइन में लगना पड़ता है। ये क्या है, सौदा लो और महीने के 2 तोड़े दो। जिसकी फैमिली है 10-12 जी खाने वाले हैं तो वो 20 किलो आटे के तोड़े में गुजारा हो जाएगा। पता नहीं का गवर्नमेंट का है क्या नादरा का है, एक मैसेज करना पड़ता है 5-5, 6-6 दिन तो वो उसमें ख्वारी लग जाती है कि वो मैसेज किया है वो आएगा या नहीं आएगा। वो मैसेज करते हैं, उनकी मर्ज़ी है, वो रिप्लाई करते हैं तो ठीक है। वो कोड दिखाएंगे तो आटा मिलेगा, नहीं कोड दिखाएंगे ना तो आटा मिलना, ना चीनी मिलनी, ना घी मिलना। आम दुकानों का रेट बहुत ज़्यादा है और वो रेट अपनी मर्जी का लगा रहे हैं। यहाँ पे एक दुकान का रेट दूसरे के साथ मैच ही नहीं कर रहा। आप एक परचून वाली दुकान पे चले जाएं उसका रेट और दूसरी परचून वाली दुकान पे चले जाएं, दोनों का रेट सेम नहीं होगा। आज के दिन में हमने लाहौर के 10 से 12 मुख्तलिफ इलाकों में यूटिलिटी स्टोर्स का जायज़ा लिया जहां पर सुबह के औकात में तो आटा दस्तयाब नहीं था और अगर दस्तयाब था भी तो एक मखसूस मिकदार में। गढ़ीशाह लाहौर का एक मसरूफ़ तरीन इलाका है और आज दोपहर में जब यहाँ आटे की तरसील की गई तो सिर्फ 125 थैले ही पहुँचाए गए। सार्फिन का कहना है कि आटा एक बुनियादी कमोडिटी है और इसके लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर कतारों में लगना या फिर अपने इलाके से दूर बनाए गए ट्रकिंग पॉइंट्स पर जाना गैर मुनासिब और वक्त का ज़िया है और वो हुकूमत से बेहतर हिकमत अमली अपनाने की दरख्वास्त करते हैं। समन खान ने इस बहरान को समझने के लिए फ्लावर मिल एसोसिएशन के एक रुकन से भी बात की जो इस मसले की बुनियाद आटे में दी जाने वाली सब्सिडी को समझते हैं। मैं तो सब बीमारियों की जड़ ही सब्सिडी को समझता हूँ। ये ठीक है कि हमारा जो ख़त गुर्बत से नीचे रहने वाला फ़र्द है, जो अवाम है, उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए, लेकिन उस सपोर्ट मिलने के साथ साथ जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है वो 1 to all के लिए बनाती है। तो ये ज़्यादती की बात है, ये हमारी कौमी दौलत ड्रेन होने की बात है। हमारी इंपोर्ट बर वक्त नहीं हो सकी क्योंकि उसमें भी सरकारी फ़ीता आता है, सुर्ख फ़ीता आता है, उसके लिए मंजूरियाँ लेनी काबीना से, फिर कोई कुछ कमेटी से, वजारत से दस्तखत करवाने। इसके लिए होना ये चाहिए था, जैसा माजी में होता भी रहा है, कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर को साथ इन्वॉल्व कर लें तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा एफिशिएंट है, बेहतर डील कर सकता है, जल्दी गंदम मंगवा सकता है। सरकारी हाथ में मामलात फिर उनकी एक मजबूरियां अपनी भी होती हैं जिसकी वजह से वो सारा डिले हो जाता है और उसके असरात मार्केट में आ जाते हैं। मैं समझता हूँ कि यह सब्सिडी ख़त्म कर देनी चाहिए। गंदम को आज़ाद कारोबार होना चाहिए, जिस रेट में भी हो, चाहे इंपोर्ट करनी पड़े चाहे एक्सपोर्ट करनी पड़े, और किसानों को भी इंसेंटिव मिलेगा। जब कीमत अगर बढ़ती है तो बढ़ने दें उसको, लेकिन गरीब को अब सब्सिडी डायरेक्ट दें, टारगेटेड दें, ताकि उसकी जो जेब पे बोझ ना पड़े। एक तरफ तो आवाम की शिकायत है कि उन्हें आटा नहीं मिल रहा, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है कि मुल्क में गंदम की कोई कमी नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर बहरान है क्यों? अजनास की मार्केट पर नज़र रखने वाले माहिरीन की राय में हालिया किल्लत और कीमत बढ़ने की असल वजह नाक़िस हुकूमती फ़ैसले और फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। और ये भी हकीकत है कि रूस यूक्रेन जंग के नतीजे में दुनिया में अजनास की कीमतों में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान को भी महंगी गंदम खरीदना पड़ी। कराची से मोहम्मद साकिब की रिपोर्ट। पाकिस्तान में इन दिनों गंदम के आटे का शदीद बहरान नज़र आ रहा है। कहीं पर आटा दस्तयाब ही नहीं और कहीं दस्तयाब है तो इंतहाई महंगे दामों। गुज़िश्ता चंद माह में इसकी कीमत फ़ी किलो में तकरीबन 100 रुपये लगभग इजाफा हो चुका है। सूबाई हुकूमतों ने शहरियों को सस्ते दामों आटा फराहम करने के लिए इस तरह के मोबाइल स्टॉल्स लगाए हैं जहाँ पर काफ़ी रश देखने में आ रहा है। सस्ता आटा को तो 3-4 महीने हो गए ढूंढते ढूंढते, अब कई लोग मर रहे हैं बेचारे आटा लेते लेते। अब बताओ सांस बचाएं या आटा लें। 1500 रुपये का 10 किलो आटा है। पिछले हफ्ते मंगाया था फिर भी 1300 रुपये का था। इस हफ्ते मंगाया है तो 1500 रुपये का 10 किलो आटा है और 6 अफराद में 10 किलो आटा 6 से 7 दिन चलता है मुश्किल से। तो ये मुश्किल ही है, देखे किस कदर का रश लगा हुआ है, मुश्किल है और क्या है।
गरीब आदमी तो खा नहीं सकता ना रोटी। अजनास पर नज़र रखने वाले माहिरीन की राय में यह बहरान काफ़ी हद तक गलत इंतज़ामी फ़ैसलों, सियासी मसलहतों और फिर बाज़ मकामी और बैनुल-अक़वामी वजूहात की बिना पर पैदा हुआ है। फरवरी के मंथ में जो है यूक्रेन और रशिया का जो है वार का कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, फिर वो चेंज हो गया जंग की सूरत में। उस वजह से एक आलमी मार्केट में कमोडिटीज़ की प्राइसेस, जिसमें ज़्यादातर को अराउंड 30% यूक्रेन और रशिया मिलके दुनिया की मार्केट की जो है एक्सपोर्ट सप्लाई को पूरा करते हैं, तो उससे एक पैनिक आया और मार्केट जो ग्लोबल मार्केट थी, जो प्रोड्यूसर्स थे, जहाँ पे इंडिया में बड़ा प्रोड्यूसर है, चाइना है प्रोड्यूसर और ममालिक हैं, उन सब में जो है उसकी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई। और वो जो वार है उसने इंटरनेशनल मार्केट में जो गंदम को आपकी 290 से $300 के करीब चल रही थी, उसको बढ़ाकर कोई मई में $515 तक पहुंचा दिया था। एक आपकी सप्लाई शॉर्ट की गई फ्लावर मिल्स को, फिर प्राइस हाइक करने के लिए आपने जो है वो ऐसे इक़दाम किए जिससे कीमत बढ़ी, और उसका तमाम जो पॉलिसी के जो ये इक़दाम थे उसका फ़ायदा जो है उन लोगों को पहुंचा जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते थे। उसमें आपको पता है हमारे पास बहुत इन्फ्लुएंशियल एग्रेरियन बैकग्राउंड के पॉलिटिशियंस हैं, और यही वजह एक बनी कि इस पॉलिसी की गलती की वजह से आपकी जो वीट की पॉलिसी है उसमें आपने एक तो 4-5% की शॉर्टेज, फिर उसको आपने फर्दर प्राइस को हाइक किया कि ऐलान किया कि 3 मिलियन टन इंपोर्ट करेंगे ऑल टाइम हाई पे। उसके बाद आपने हाई प्राइस पे परचेज़ कर ली, जो आपने गलत फैसला किया। फिर उसके बाद आपने जो है उसकी सप्लाई जो है कोटा की कम कर दी। हुकूमत का कहना है कि मुल्क में गंदम या आटे की कोई कमी नहीं, तमाम सूबों और रीजन्स में भरपूर स्टॉक्स मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर स्टॉक्स मौजूद हैं तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गलत इंतज़ामी फ़ैसलों के ज़रिए बहरान को शिद्दत इख्तियार करने वालों को कानून की गिरफ्त में क्यों नहीं लाया जाता? मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। अमेरिका में एक सरगर्म तंजीम साउथ एशियन अमेरिकन्स लीडिंग टुगेदर के मुताबिक अमेरिका भर में तकरीबन 54 लाख जनूबी एशियाई नजाद अफराद आबाद हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद आज भी अपनी आबाई रिवायात को ज़िंदा रखे हुए है, ख़ासतौर पर खाने पीने के मामले में। गंदम के आटे की तलब अमेरिका में भी खासी है, लेकिन आजकल जनूबी एशियाई कम्युनिटी को चक्की का आटा हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। तफसील जानते हैं आफ्ताब बोड़का के व्लॉग में। इस वक्त अमेरिका के ग्रोसरी स्टोर में एक ऐसी चीज़ गायब है जिस पर पाकिस्तान और भारत से आने वाले लोग हेविली रिलाई करते हैं, और वो है चक्की का आटा। पिछले कुछ महीनों से इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाला आटा इन स्टोर से गायब है, और जहां पर ये कम मिकदार में अवेलेबल है वहां दुगनी और 3 गुना कीमतों में बेचा जा रहा है। कुछ अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में इंडिया से आने वाले चक्की के आटे की किल्लत तब शुरू हुई जब भारत ने अपने ही मुल्क में बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए आटे की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी, और जैसे जैसे अमेरिका में इस आटे की सप्लाई कम होना शुरू हुई वैसे वैसे ग्रोसरी स्टोर्स के शेल्फ्स पर यह आटा गायब होने लगा। वैसे तो अमेरिका और कनाडा में भी लोकली आटा प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन यहाँ के दुकानदारों के मुताबिक जो भारत और पाकिस्तान से आने वाले लोग हैं उन्हें एक ख़ास किस्म के आटे से रोटी बनाना अच्छा लगता है, और यहाँ पे जो लोकली प्रोड्यूस आटा होता है उससे वैसी रोटियां नहीं बनती। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रोसरी स्टोर्स में इस आटे की गैर मौजूदगी के बाद कुछ लोगों ने इसे ऑनलाइन भी बेचना शुरू किया, लेकिन ऑनलाइन भी कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी से बाहर हैं। लेकिन अब जैसे जैसे भारत से इस एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर किल्लत कम होना शुरू हो सकती है। लेकिन जब तक ये किल्लत मौजूद है तब तक कुछ पाकिस्तानी दुकानदारों के मुताबिक पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए ये अच्छा मौका है अमेरिकन मार्केट में एंटर होने का अपने आटे के साथ। पाकिस्तान से फ़िलहाल नहीं, अभी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और फिर बाकी अब बोलते हैं कि बैन करा हुआ है अब, लेकिन अब वो पता नहीं है। बट फ़िलहाल एज अ पाकिस्तानी ओनर एंड पाकिस्तानी शॉप ओनर तो हमारा यही है कि इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द लेके आए पाकिस्तानी आटा। इंशाल्लाह आई थिंक स्पेशली अगर अपॉर्चुनिटीज़ लोग आएंगे, दूसरे भी प्रोड्यूसर्स आएंगे, तो ये अपॉर्चुनिटी आई थिंक पाकिस्तान और दूसरे जो मुल्क हैं वो फुलफिल कर सकते हैं। राइट। तो ये शॉर्टेज 3-4 महीने में ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि वो अब ये अपॉर्चुनिटी हमारी है कि कैसे लें। क्या आपके मोबाइल और लैपटॉप पर वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट नहीं खुलती? तो आप हमारा कंटेंट देखने और पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं। या हमारी स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करें
जो एप्पल और एंड्रॉयड दोनों डिवाइसेस के लिए दस्तयाब है। पाकिस्तानी तलबा की एक बड़ी तादाद बेहतर तालीम के लिए बैरून मुल्क आने के ख्वाब देखती है, लेकिन पाकिस्तान के मुआशी मसाइल की वजह से डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे ने ऐसे कई तलबा की मनसूबाबंदी को मुतासर किया है जो अमरीकी इदारों में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। मुआशी हालात ने बहुत से तलबा के लिए ये ख्वाब पूरा करना कैसे मुहाल कर दिया है, जानते हैं इस्लामाबाद से गेतियारा अनीस की इस रिपोर्ट में। फुरकान अहमद का ताल्लुक इस्लामाबाद से है और वो अमरीकी रियासत इलिनॉय में वाक़ई एक यूनिवर्सिटी से MBA की तालीम हासिल कर रहे थे। उन्होंने इससे पहले इसी इदारे से अंडर ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की थी। इनका कहना है कि 160 से 230 रुपए के करीब डॉलर की कदर में इजाफे की वजह से इनके लिए फ़ीस की अदायगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। इस वजह से वो अपनी तालीम अधूरी छोड़कर वापस पाकिस्तान आ गए हैं। अब देखिए, एक स्टूडेंट है जिसने A लेवल्स किए और वो कह रहा है कि यार मैंने जाना है, मेरा टारगेट है USA, ठीक है। अब मैं भी उसी पोजीशन में था एक टाइम पे, अब उसके लिए तो बेसिकली इम्पॉसिबल हो गया। अब मेरे केस में ये था कि यार मैंने कहा था यार ठीक है, अभी थोड़े डॉलर के हालात ख़राब है लेकिन कर लेंगे, घर वालों से बात किए, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इंटरबैंक में डॉलर बढ़ा है वैसे वैसे मेरा भी एजुकेशन में हासिल करना और मुश्किल हो गया था। बेसिक जो कॉमोडिटीज़ होती हैं उसमें ज़्यादा मतलब मुश्किलात पैदा होने शुरू हो गई थी, और फिर उससे आगे फिर ये कि बस मैं रोक दिया प्लान। अगरचे पाकिस्तान से बैरूनी ममालिक में तालीम हासिल करने वालों का कोई सरकारी डेटा मौजूद नहीं, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल 10,000 के लगभग पाकिस्तानी तलबा तालीम हासिल करने बरतानिया, अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। एजुकेशनल कंसल्टेंट मुबशर हसन का कहना है कि इस वक्त तलबा का सबसे बड़ा मसला फ़ीस की मद में जाने वाली रकम में लाखों रुपए का इजाफा है। जो करेंसी डीवैल्यूएशन हुई है उसकी वजह से अगर लेट्स सपोज कि वो पहले उनको फ़ी पे करनी पड़ रही थी 20 लाख, तो अब वही डीवैल्यूएशन की वजह से उनको 30 लाख तक पे करने पड़ रही है, ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स का ट्रेंड तो है, दे वांटेड टू अप्लाई, बट जो उनकी पॉकेट है वो काफ़ी श्रिंक हो चुकी है, ठीक है, बिकॉज ऑफ करेंसी डीवैल्यूएशन। फिर उनको रेट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अगर ओपन मार्केट का रेट 235 चल रहा है अभी लेट्स सपोज डॉलर का, तो उनको कहीं 250 में मिलेगा, कहीं पे 250 प्लस मिलेगा। तो एट द एंड आई मीन स्टूडेंट्स आर सफरिंग। मुबशर हसन के मुताबिक किसी तालिब इल्म को बैरून ममालिक तालीम के लिए सालाना 15,000 के लगभग डॉलर फ़ीस के लिए चाहिए होते हैं, जबकि रहने और खाने के अखराजात इससे अलग हैं। इनके मुताबिक अमेरिका हो या कोई और मगरबी मुल्क, सब में अखराजात का यही तखमीना है, जिसकी वजह से एक साल का खर्चा 50 से 60 लाख रुपए पड़ता है। इसीलिए अब लोग दीगर कुछ ममालिक का रुख भी कर रहे हैं जहां ये अखराजात कदरे कम हैं। US और UK मेन कंट्रीज़ होती हैं कि जहाँ पे ये बच्चे अप्लाई करते हैं, ठीक है। स्कूल काउंसलर्स भी जो हैं वो इन कंट्रीज़ के लिए अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं और हम एज अ कंसल्टेंट भी उनको गाइड करते हैं। बट इसके अलावा जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इन मुल्कों में भी वो अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन अभी एक तीसरी डेस्टिनेशन भी आ गई है जो कि जैसे मलेशिया है, वहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं, तुर्की है, ठीक है, तुर्किया भी कहते हैं, तो वहाँ पे भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा अंडर ग्रेजुएट में जा रहे हैं। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा जो कि UK में जा रहा है, ठीक है, उसकी एक साल की अगर फ़ीस 15,000 पाउंड है जो कि 40 लाख के बराबर बन रही है। अगर वो वही डिग्री मलेशिया से करेगा तो ऑलमोस्ट वो 50 लाख 3 इयर्स की फ़ीस बन रही है। फुरकान का कहना है कि वो पाकिस्तान में रहकर पैसों का इंतज़ाम करना चाहते हैं ताकि अपनी तालीम मुकम्मल कर सकें। वो कहते हैं कि फ़िलहाल वो अपने MBA को मौखर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर दोबारा वापस चले भी जाते हैं तो इनका 1 साल का कोर्स शायद 2 साल में मुकम्मल हो सके। पर टाइम फ्रेम बढ़ गया। देखिए हम ने कहा क्या क्लासेस नहीं मिलेंगी, 1.5 साल कर लो। अब 1.5 साल की जगह यार 2 साल भी कर सकते हो। फिर उन चीज़ों को जहन में रखते हुए अभी मैंने टर्म ऑफ लिए, आई कम बैक, होपफुली इंशाल्लाह प्लान है कि वापस जाऊँ, लेकिन फाइनेंसेस वगैरह की इवैल्यूएट करूँ। डॉलर की आए दिन बदलती कीमत की वजह से फुरकान की तरह बहुत से तलबा को खदशा है कि शायद वो बैरून मुल्क तालीम हासिल ना कर सकें। अलबत्ता एजुकेशन कंसल्टेंट्स का कहना है कि तलबा की बड़ी तादाद मुश्किलात के बावजूद यूरोप, अमरीका, बरतानिया और कनाडा में इस उम्मीद के साथ जाने की ख्वाहिशमंद है कि तालीम के बाद किसी तरह वहीं मुलाजिमत इख्तियार कर लें। गेतियारा अनीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
دنیا بھر سے قدرتی مناظر کی تصاویر بنانے والے فوٹوگرافرز نے زمین کے بدلتے ہوئے قدرتی ماحول کے بارے میں کرائے گئے ایک مقابلے میں تصویروں کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ یہ مقابلہ ماحولیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے ایک غیر منافع بخش ادارے دی نیچر کنزروینسی کی طرف سے کروایا گیا تھا۔ اس مقابلے میں انعام جیتنے والی تصاویر کے فوٹوگرافرز کے خیالات کیا ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شبنم کے قطرے اس جامنی رنگ کے دل کی شکل والے پرپل ہارٹ فلاور پر ہیروں کی مانند چمک رہے ہیں۔ پنکھا نما گردن والی ایک چھپکلی بھارت میں پون چکیوں کے ایک فارم پر دھوپ سینک رہی ہے، اور تبت کی ایک دور دراز شاہراہ کی ڈرون کی مدد سے بنائی گئی تصویر زمین کے کٹاؤ سے بننے والی درخت نما شکل کو دکھا رہی ہے۔ یہ ان فوٹوگرافرز کی تصاویر میں سے صرف چند ہیں جنہوں نے قدرت کے منفرد پہلوؤں کی تصاویر بنائی، اس امید میں کہ ان سے ہمارے مستقل تبدیل ہوتے سیارے کی خوبصورتی اور اس کی کمزوری کے بارے میں آگہی پیدا کر پائیں۔ یہ تصاویر دی نیچر کنزروینسی کا ایک مقابلہ جیتنے والوں میں سے ہیں، جو کہ ماحولیات پر کام کرنے والا ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے۔ اس مقابلے میں 196 ممالک اور خطوں سے 1,00,000 انٹریز بھیجی گئیں۔ یہ مقابلہ ہمیں دنیا بھر کے فوٹوگرافرز تک رسائی دیتا ہے اور انہیں ہمارے کمپیوٹر کی اسکرینز تک لے آتا ہے۔ ہمیں دنیا کا ہر کونا کسی اور کے نظریے سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ فلورین لیڈو نے ناروے میں اب خالی پڑی ایک پرانی روسی کوئلے کی کانکنی سے منسلک آبادی میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی اس مادہ برفانی ریچھ کی یہ تصویر کھینچی۔ میرے لیے یہ تصویر ایک پیغام ہے کہ مستقبل میں ہمارا معاشرہ تباہ ہو سکتا ہے اور جانور، جنگلی حیات، فطرت باقی رہیں گے۔ مقابلے کے جج اور یوٹیوب پر بریو ولڈرنس ایڈونچر سیریز کے میزبان کایوٹی پیٹرسن نے فلورین لیڈو کی تصویر کا انتخاب کیا۔ مجھے لگا اس تصویر سے متعلق ہر چیز انتہائی جاندار تھی۔ ایک جانور زندہ رہنے کی جدوجہد میں کچھ بھی کرے گا، اور جب بات ایک ماں کی اپنے بچوں کا خیال رکھنے کی آتی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ وہ وہاں اپنے بچے کے لیے تھی اور اس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اس تیندوے کی یہ تصویر کھینچنا، جو کہ ایک مادہ بندر کی لاش لے جا رہا ہے جس سے بندر کا بچہ ابھی بھی چمٹا ہے، زیمبیا کے فوٹوگرافر شفیق ملا کے لیے ایک دلسوز تجربہ تھا۔ جب میں نے انسٹاگرام پر پہلی بار یہ تصویر پوسٹ کی تو مجھے بہت سی منفی باتیں سننے کو ملی، جیسے تم نے بندر کو بچایا کیوں نہیں، تم اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہو۔ یہ ایک بہت جذباتی اور دل دکھانے والا تجربہ تھا، لیکن جنگلی حیات کے فوٹوگرافر کے طور پر ہم قدرت کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ آسٹریلیا میں رہنے والی فوٹوگرافر کیلی چی کے لیے قدرتی طور پر روشنی پیدا کرنے والی کھمبیوں کو ڈھونڈنا اور ان کی تصاویر کھینچنا ایک جادوئی تجربہ ہے۔ ایک کھمبی کی تصویر، جسے انہوں نے عجیب سی سبز روشنی کے باعث گھوسٹ یا بھوت مشروم کا نام دیا ہے، پودوں اور کائے کی کیٹیگری میں پہلا انعام لینے میں کامیاب ہوئی۔ دن کی روشنی میں یہ مشرومز انتہائی عام سے لگتی ہیں، لیکن رات ہوتے ہی یہ بالکل مختلف نظر آنے لگتی ہیں۔ ان سے روشنی نکلتی ہے اور آپ کو لگتا ہے آپ پریوں کے دیس میں ہوں جیسے۔ یہ انتہائی عجیب تجربہ ہے، تقریباً روحانی تجربے جیسا۔ جہاں ہر تصویر منفرد ہے، یہ سب اس فطرت کی خوبصورتی، اس کی نزاکت اور اس کی سخت جانی کی یاد دہانیاں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ عجائب قدرت کی حفاظت کی اہمیت کی یاد دہانی بھی کراتی ہیں۔ جولی ٹیبو کے لیے عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔